Hi guys, I'm your host Pavi Bhasin from Conversations. So today we will be talking about how homeowners view a house. Is it the view, ventilation, or the vastu? So today we will be talking how this vastu consultation actually works. Do we actually carry a compass or a cosmic Wi-Fi? Today we will be decoding this with Ms. Chanchal Gupta, who's a vastu consultant with 6+ years of experience and has clients across the government of India, global business houses, NRIs and HNIs across US and Dubai. Welcome, ma'am. Welcome to the podcast. Hi, Pavi. Thank you for having me here. Thank you, ma'am. So we will be doing a first section that will be about how actually Vastu consultation works. So I'll be asking you a few questions and you'll just have to guide us what actually goes around in a Vastu consultation session. Sure. So ma'am, my first question is when you enter a luxury apartment, what do you look at first? The door, the light, or the energy? So, Pavi, it's always the energy first. Whenever I enter a particular space, it's about whether the energy of the space is draining me, it's uplifting me, or it's making me feel better. So, that's very quickly felt within a few seconds. And then, of course, I go and proceed towards the doors, the entrance, the windows, the key placements. Where is the kitchen provided? Where are the WCs in the space? So all of that complete layout, that makes a lot of difference. Yeah. Do clients ever try to hide bad Vastu zones before you arrive? Oh yes, they do. They try to tidy up things before I arrive anywhere. But my purpose is not to put them into that discomfort or that conscious zone. It's about, I don't want to judge. I want to guide them that it's nothing to be scared of. It's about how a beautiful alignment can be done between their feelings and between the energy in which they're living the entire day. So that makes a lot of difference. And what do you think is the most common mistakes गुड़गांव में जो घर वाले हैं वो homeowners maximum common mistake क्या करते हैं? So जो मैंने देखा है गुड़गांव में क्या, a lot of people direly need a powder room. Okay. Under that cover, a lot of people end up making a WC, which is mostly wrong. So जितने भी 500 गज के फ्लोर हैं या लेट्स से 400 गज के भी फ्लोर हैं, देयर विल डेफिनेटली विल बी अ WC which will not be allowed in that area. Okay. Which does not carry any treatment and which has dire results. So in Gurgaon, the main focus is being put on the luxury thing and the beautiful interior thing, but very less attention is being given on the key placements. Like a WC and the kitchen carry a lot of energy. So they should be properly, paid attention upon, which is not happening here. And hence, after some time, it also depends on your stars. A person may face problems within 6 months and a person may not face a problem till a year also. But yes, if the energies are not aligned, you will have to, think upon it that there is something which is not right in the space. So basically, if I would say, just to accommodate all the amenities, Yes. like powder washroom में जो आप कह रहे हो, उसको accommodate करने के लिए sometimes they just let go of the. Yes. The basic focus which should be there is missed out, and that definitely lands the person in a problem. A lot of convenience is always a problem. Have you ever walked into a 10 crore penthouse and gone bonkers? Oh, I have walked into a more than 100 crore penthouse and went completely crazy. oh, That I was unable to believe, and I will not mention the name, but that belonged to a builder only. And to my surprise, the layout was like very horrible when it came to Vastu principles. The center was disturbed, the northeast energies were completely disturbed, and that I was very unhappy. When I stepped into, I somehow felt that load on my head also, that something is not, just right here. And then when I questioned them certain things, and when they agreed, they also went completely crazy that, okay, is it? Because I did not know anything about their stars, and the person suffered with the loss of a mother and everything. And all of that I could make out barely by walking into their space only. so you were able to analyze this, और आपने वो उनसे relate, मतलब when you asked them out and Yes. it somehow matched. Yes. So a lot of it is intuition. A lot of it is the heavy energy you feel there. So it also depends that how much the person is agreeing to it. So they start coming into that discomfort, and then slowly and gradually they come up with all the They things. open up. Yes, they open up, and they also correlate that yes, ऐसा ही था.
नहीं नहीं जब हम आए थे तो ऐसा नहीं था, जब हम आए हैं तो ऐसा हो गया था. सो यू नो थिंग्स लाइक दैट. हम लोग पैनिक करते हैं जब आप कंपोस्ट बाहर निकालते हो. डेफिनेटली करते हैं, बिकॉज बुरी बात किसी को सुनना नहीं अच्छा लगता. एवरीवन वांट्स टू नो योर द हाउस इज वेरी अलाइंड एंड एवरीथिंग, बट देन व्हेन यू स्टार्ट ओपनिंग अप देन दे आल्सो वांट टू कन्फेस दैट हाँ ऐसा ही है, वी आर नॉट हैविंग हेल्दी रिलेशंस, all of the earnings are going into medical expenses, the females are suffering with their health, a lot of kids are going through mental health problems, and you know things like that. तो मैटर तो करता है. मैम तो ये भी सिचुएशन आती होगी कई बार लोग 50% फॉलो करते होंगे, 50% नहीं भी फॉलो बिल्कुल करते आती है. तो आई बिलीव प्रॉब्लम्स का 50% ही सोल्यूशन मिलना है. जैसे हम एंटीबायोटिक का कोर्स लाते 5 दिन का है पर 3 दिन में करके बंद कर देते हैं, राइट? सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितना एंड टू एंड. आई हैव ऑल्सो सीन पीपल जिनको आई एडवाइस कि अगर ये WC हटना है, सो बिफोर आई लीव देयर हाउस दैट WC इज ऑलरेडी पुल्ड आउट एंड सेंट आउट ऑफ द हाउस. So there are different kind of people who deal differently with their, you know, problem. So it's also about how badly you need a solution. Got it. Yeah. मैम आपको कितना टाइम लगता है एक घर में एक एनर्जी को जज करने में दैट नाउ द एनर्जी इज राइट? कैन यू मेक दैट एन इंस्टेंट कॉल या आपको एक टाइमलाइन होती है? इंस्टेंट कॉल में थोड़ा सा पता चलता है. कुछ नेगेटिविटी होती है जो थोड़ा सा सेंस होती है, कई बार नहीं भी होती है. कई बार वो लेआउट को जज करके, नाउ दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्रॉपर्टी. लेट्स से आई एम वॉकिंग इनटू अ फार्म हाउस जहाँ पे मुझे एक राउंड लेने में इट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स. सो आई डोंट वांट टू रश विद थिंग्स, यू नो, कि मैं अभी बोल दूं कि ये चीज ठीक नहीं है, मैं बाद में बोल दूं ये चीज ठीक है. सो दैट्स नॉट वाइज. इट्स अबाउट योर हाउस. योर हाउस कैरी अ लॉट ऑफ लक फॉर यू एंड आई डोंट थिंक दैट शुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड एट एनी कॉस्ट. सो येस, इफ इट्स अबाउट अ फ्लोर, लेट्स से 500 गज का फ्लोर है, सो a 30 to 40 minutes time is enough to go around and check with my compass and the placements around. But sirf energy sensing se I don't come to a conclusion, because everything is very scientific, you know. Energy is something which is intuitive, that matters. But along with that, the layout also matters, the Google location, the degrees we pick from the Google Earth, all of that collectively will you know, help me come to a conclusion and guide the person in the right way. So you introspect, you take your good time, Yes. and then you analyze everything, Yes. and then you come out with the. It's about you know a lot of things. आपके किस्मत की बात है. You don't want to rush with it. I don't want to rush either. So yes, I take how much ever time should be taken for a particular space. Ma'am, is there a difference between, if I talk about old independent houses that we have or modern high rise, energy wise कोई इनमें difference है? डेफिनेटली है. सो जो ओल्ड इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं उनमें वेंटिलेशन है, ओपन एरियाज हैं, नेचुरल लाइट्स हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रॉमिस्ड होती हैं, इंश्योर्ड होती हैं. बट ऐसा नहीं है कि उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती. अगर उन घरों में भी पिट्स गलत बने हुए हैं, बाय पिट्स आई मीन गड्ढे हैं, वाटर टैंक्स हैं, ओवरहेड वाटर टैंक्स, अगर वो गलत हैं तो वो गलत हैं, इररिस्पेक्टिव वो ओल्ड इंडिपेंडेंट है या हाई राइज है. अब हाई राइज में let's say if I talk about a housing which has 6 towers and each tower has multiple flats, you know, so एक फ्लोर पे भी चारों फ्लैट का वास्तु बिल्कुल अलग होता है. So it has to be dealt with complete precision. Again, you cannot rush here. So एक पूरे के पूरे टावर का वास्तु एक पूरे के पूरे टावर के वास्तु से बिल्कुल अलग हो सकता है. हाई राइज में थोड़े चैलेंजेस इसलिए होते हैं बिकॉज द ड्रेनेज एंड द फिक्स प्लेसमेंट्स यू कांट चेंज अ लॉट ऑफ इट. इंडिविजुअल हाउसेज में द जमीन से लेके ऊपर तक का बिल्डिंग आपका है. सो इट्स योर कॉल कि आप उसको चेंज कर सकते हो एंड इट जस्ट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग हेड. हाई राइज में आप थोड़े से बाउंड होते हो, यू कांट यू नो रिप्लेस एंड रीलोकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो हाँ, स्ट्रक्चरली आप कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते. स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल नहीं होते. इट ब्रिंग्स मी टू अ कंक्लूजन और अ आइडियोलॉजी ओनली दैट हाई राइज के अंदर आई थिंक अभी तक PLC वास्तु बेस पे हम देखते नहीं है. Yes, a lot of But usually developers vouch for it, but personally I have seen that सब कुछ हैंडल नहीं हो सकता. सबका पेन अपना है, तो सबको अपना इंडिविजुअल कंसल्टेशन जरूर कराना चाहिए, सोचना चाहिए. बिकॉज अगेन आई विल से एक फ्लोर पे मैंने 4 घर देखे, चारों घरों के बिल्कुल अलग वास्तु थे. मैम जैसे अभी कुछ घरों में हमें बिकॉज ऑफ सनलाइट या बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द हाउस the developer can charge for a PLC. Yes. So is it in relation with जैसे sunlight जहाँ पर ज़्यादा आती है they demand a better PLC, या जहाँ पर आगे का व्यू बहुत अच्छा है वहाँ पर ज़्यादा PLC अप्लाई करते हैं, उसका वास्तु से कोई रिलेशन है? Preferred location charge that a developer charges. Yes, definitely. The पूरी प्रॉपर्टी मार्केट ही इस पे चलती है. A property which is not very vastu aligned will not be preferred and hence ये सबसे ज्यादा
जब मुझे कोई फोन करके कहता है ना कि ये हमें बड़ी अच्छी डील पे मिल रहा है, मेरा माथा वहीं ठनक जाता है. जो इफ समथिंग इज फ्री और समथिंग इज रिबेटेड, देन यू आर पेइंग द प्राइस फॉर इट. सो यू नीड टू बी मोर अलर्ट. अगर कुछ डील पे मिल रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले तो सिर्फ प्लेस को चेक करना जरूरी नहीं है. आप ये जरूर जानो कि जो बंदा यहाँ से गया है वो क्यों गया है. एंड 90% ऑफ द टाइम्स वो बंदा वहां से किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से ही गया होगा. या तो उसने बिजनेस में सफर किया होगा, या उसने मेडिकली सफर किया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो वो प्रॉपर्टी डील पे आई होगी. मोस्ट ऑफ द केसेस इन माई एक्सपीरियंस आई हैव सीन दिस. और जो प्रॉपर्टीज अलाइंड होती हैं, सन फेसिंग होती हैं, लेट्स से नेचुरल लाइट चारों तरफ से आ रही है और अंदर का लेआउट भी अलाइंड है, डेफिनेटली आपको सस्ता नहीं मिलेगा. सस्ती चीजें बाद में महंगी पड़ती हैं. Good one. दैट्स अ फैक्ट. So, ma'am, let's talk about directions. Is it a myth or is it reality? So, is north facing really a money magnet? So I'll tell you, north is a direction of opportunities and finances. So money magnet तो उसको इसलिए नाम दे दिया. अब मनी तो आ रहा है पर रुक कहीं नहीं रहा, बिकॉज साउथ बिल्कुल गॉन है आपका. ठीक है, साउथ जैसा होना चाहिए, बैलेंस नहीं है, कोई और उसमें इशू है. तो पैसा आ रहा है और सारा गड्ढे में जा रहा है, तो ऐसे पैसे का कोई क्या करेगा, राइट? So, it is just half done. So it is half done, yes. It's a battle half won कि आप बीच में पहुंच गए हो पर आपको कोई सिग्नल नहीं है कि अब कहाँ जाना है. So that money is not really earned, and money का ultimate purpose should be growth, right? You are not growing. You are somewhere stuck. So it's not always about north. It's not always about east or west. It's about the complete balancing of a space which should be handled with care. North कोई magic switch नहीं है कि उसको दबाया और बस life में पैसों की झड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है. It is a part of that balancing which is needed, but overall layout should also be looked upon with proper care. And south facing, is it bad? Not at all. South facing is not bad. अगर साउथ फेसिंग अपार्टमेंट्स या घर या फैक्ट्रीज भी उसी केयर और प्रेसिजन के साथ हैंडल की जाएं, सो दे ऑल्सो वर्क ब्यूटिफुली फॉर योर लक एंड प्रोस्पेरिटी. अगेन अगर हम कंप्लीटली फॉलो करें तो इट इज जस्ट मिसअंडरस्टूड कि साउथ फेसिंग इज बैड, राइट? यस, बिल्कुल भी नहीं है. गौमुखी, शेरमुखी, ऑल ऑफ दिस इज, ये सिर्फ नाम है जिनको पकड़ के उनके ऊपर एक बात कोट कर दी है, नोशन बना दिया गया. यस, एंड स्पेशली द लेमन इज ओनली फॉलोइंग कि शेरमुखी वर्क प्लेस के लिए अच्छा होता है, गौमुखी घर के लिए अच्छा होता है. ऐसा नहीं है. गौमुखी किस डायरेक्शन में आ रहा है, शेरमुखी किस में आ रहा है. डायरेक्शंस प्ले द की रोल. जैसे आप मैथ्स बिना टेबल के नहीं कर सकते, आप वास्तु भी बिना डायरेक्शंस के नहीं कर सकते, सिर्फ नॉर्थ देख के. एंड ट्रस्ट मी, जब हम नॉर्थ चेक करते हैं, लाइक आई गेट अ कॉल कि हमने नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टीज सिलेक्ट की है एंड यू हेल्प अस फाइनलाइज वन ऑफ देम. और जब मैं जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि नॉर्थ तो है ही नहीं, नॉर्थ तो कॉर्नर में आ रहा है. And a normal layman will not be able to judge because he doesn't know how to use a compass from the center properly. The north will a lot of times come on your extreme corner. Then that makes the judgment again more, careful, that how do you infer and how do you come to a conclusion कि ये north facing है भी या नहीं है. गेट कहाँ पे निकलेगा. Let's say यूटिलिटी में आपको 4 टॉयलेट्स चाहिए, तो वो कहाँ पे निकलेंगे. सारे टॉयलेट्स कभी भी करेक्ट नहीं हो सकते, पर ट्रीटमेंट हो सकता है. तो जो टॉयलेट्स आप दे पा रहे हो वो करेक्ट दे पाएंगे. ट्रीटमेंट वाला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. सो नॉर्थ साउथ इज ओनली अ पार्ट ऑफ इट. मैम, सो विच डायरेक्शन डू यू थिंक इज बेस्ट फॉर द मेन एंट्रेंस? सो लाइक गॉड प्रिवेल्स इन ऑल डायरेक्शंस. ऑल डायरेक्शंस आर ग्रेट. यू हैव टू चूज द राइट डोर फॉर यू. जो डोर की ओपनिंग बनती है वो करेक्ट होनी चाहिए, इवन इफ इट इज साउथ, इवन इफ इट इज वेस्ट. It does not matter. So डोर की ओपनिंग भी स्पेसिफिक नहीं है. डोर की ओपनिंग चारों डायरेक्शंस में there are 2 doors each which are vastu perfect entrances. Okay. So all the directions are good. Master bedroom. So master bedroom is good in west, good in south, and good in southwest also. Kitchens. Kitchens are excellent in southeast, and Okay. then the next zone is northwest. A complete no is northeast. Northeast नॉर्थ एंड को- नॉर्थ ईस्ट आर अ कंप्लीट नो, बिकॉज उन ट्रीटमेंट्स का ट्रीटमेंट भी नहीं है, उन किचन्स का ट्रीटमेंट भी नहीं है, एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट एंड दे रियली मेक योर लाइफ डिफिकल्ट. Temples. मंदिर. मंदिर, नॉर्थ ईस्ट इज द फर्स्ट प्रेफरेंस, देन ईस्ट इज गुड, एंड देन वेस्ट इज ऑल्सो गुड. मैम, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट कितना पैनिक किया आपके लिए? हाउ विल यू रेट इट फ्रॉम 1 to More 10? than I can put in my words. It is very, very harmful. बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं इसके अराउंड कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम तो अभी तक ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. सो ऐसा हो ही नहीं सकता.
it's like eating junk every day and still expecting yourself to live more than 100 Stay years. healthy. So that's that wrong notion you are giving to yourself. ऑल्सो मुझे पता चलता है कि हमारे यहाँ है तो सही, पर हम यूज नहीं करते हैं तो हमें कुछ नहीं कहेगा वो, ऐसा नहीं है. अगर आपके पास है और आप यूज नहीं करते हैं, देन इट्स ऑल द वे मोर इजी फॉर यू टू गेट रिड ऑफ इट. वो और ज्यादा आसान है, क्योंकि उसके होने मात्र से ही प्रॉब्लम की जो लेवल है वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते. मैम टेपिंग के बारे में आता है, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट की कोई रेमेडी नहीं है. इफ कोई यू remedy हैव नहीं अ है. वॉशरूम इन द नॉर्थ ईस्ट, इट ओनली विल बी सॉर्टेड आफ्टर रिमूवल. Complete removal of the WC, the pot, that can only help you and save you. बैल्कनी की डायरेक्शन क्या होगी अगर मुझे एक हाई राइज में लेना है? So balconies are more preferred in the north and the eastern directions, definitely. But high rise में since they're not supported from the ground, so उसका एक minimal role है. But then that's the later point we come to while we select a house for someone. So the preferred location is definitely north or east. Corner apartments, according to you, they are tricky or are they lucky? Always tricky. Tricky in the sense that if they prove good, they can be very lucky. So it can be good tricky also. Good tricky, yes. Minus depending corner. on your luck. So it's like you have to be really careful while selecting, especially 3 corner, double side corner की बहुत fancy है when it comes to bungalows also, कि हमने 3 side corner लिया है. Let's say एक चौराहा है और उसके चारों कोनों पे घर होते हैं. यू वॉन्ट बिलीव कि उन चारों घरों का लक, उन चारों घरों के रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. वन ऑफ देम विल प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग एंड वन ऑफ देम विल सफर लाइक एनीथिंग. सो इट स्टार्ट्स विथ सिलेक्शन ऑफ योर हाउस. सो व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बजट, minimum floor we will not cost you less than 3-4 crores. So I think a part of this investment should definitely go for your selection, so that you end up in a house which brings you luck and happiness. Absolutely agree. Ma'am, one more question. T point के बारे में what are your views? Usually T point के जो plots होते हैं हमारे, usually maximum time उनकी जो selling proposition होती है that comes on at very later stage. Yeah. बहुत आराम से बिकते नहीं है. Because they are least preferred, the energy is quite disrupted at the T points. अब T points में भी अब फ्लोर सिस्टम है तो तीनों चारों फ्लोर पे अलग रिजल्ट्स आ सकते हैं. Okay. सो ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि ऊपर वाले तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा मतलब पता नहीं क्यों हो रहा है, या ऊपर वाले तो सब अच्छे चल रहे हैं, हम क्यों खराब हो जाएंगे इसमें. लेट से कोई बाय करने गया है, बट कई बार तो प्लॉट्स भी सेल नहीं होते, या टी पॉइंट के प्लॉट्स को Because- लास्ट वेटेज मिलती है. या बिकॉज जो सामने से एनर्जी डिसरप्ट होती है आके जब घर पे टक्कर लगती है, दैट हैज टू बी द गुड वन, राइट. T zones are generally not preferred, but if they have to be, then the directions have to be checked thoroughly. सो रेमेडीज हैं. Remedies और डेड एंड पे अगर घर हो, not preferred at all. अब पवी रहते सब को डेड एंड पे भी रहते हैं, साउथ वेस्ट में भी रहते हैं, टी पॉइंट पे भी रहते हैं. अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कम लाइक कि तो ये घर क्या बिकते नहीं है, लोग तो रहते ही हैं उसमें. सो एवरीवन हैज देयर ओन डेस्टिनी ऑल्सो, राइट. नॉट एवरीवन सफर्स और नॉट एवरीवन प्रॉस्पर्स इन द सेम वे. सो आई बिलीव कि जिसने वैसे वाली परेशानी झेलनी होगी वो अपने आप उस घर के लिए खुद को कन्विंस कर लेता है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू एनी वैलिड साइंटिफिक पॉइंट कि क्यों नहीं लेना चाहिए. दे विल कन्विंस देमसेल्व्स कि नहीं इतना बुरा नहीं है, ये लोग भी तो रह ही रहे हैं, ऐसा क्या हो गया. देन इट टेक्स सम टाइम फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वर यू प्लेस्ड हियर. गॉट इट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मनी, करियर एंड रिलेशनशिप. उसका रिलेशन वास्तु के साथ कैसा है? काफी स्ट्रांग है. सो एवरी जोन हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स. अगर आपका मनी का जोन डिस्टर्ब होगा तो आपको मनी में, अपॉर्चुनिटीज में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, एंड दैट्स प्रूवन. इफ योर नॉर्थ इज कम्बस्ट, लेट्स से इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, नॉर्थ अच्छा नहीं है, कम्बस्ट है, कटा हुआ है, कोई भी उसमें इशू है बैलेंसिंग में, तो आपको पैसा कमाने की जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, इवन इफ यू आर इन द सर्विस क्लास, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो आती हैं उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल हमेशा फील होगा कि मुझे आती ही नहीं है. लेट्स से नॉर्थ में किचन है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कन्वर्ट ही नहीं होंगी. सो इट्स अबाउट हर एक प्लेसमेंट का एक अलग अपना रिजल्ट है. साउथ वेस्ट आपका खराब है तो रिलेशनशिप इशू 100% आएगा. आप कम्युनिकेट सीधा करोगे, बट आपका जो पार्टनर है या स्पाउस है, लेट्स से आपके बच्चे भी हैं, दीज डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग विद रिलेशनशिप्स विद चिल्ड्रन. जिस घर में साउथ वेस्ट खराब होगा वो पेरेंट्स और बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन ही इतनी डिफिकल्ट हो जाती है कि वो
एक दूसरे की बात को कभी पॉजिटिव तरीके से समझ ही नहीं पाते, ट्राई भी नहीं करना चाहते. तो हर जोन अपना एक एट्रीब्यूट जरूर कैरी करता है. साउथ ईस्ट खराब होगा तो घर में फीमेल. दिस इज प्रूवन. आई वेंट टू अ हाउस, आई सॉ अ पिट इन द साउथ ईस्ट. आई आस्क्ड देम कि हाउ आर द फीमेल्स डूइंग, एंड यू वोंट बिलीव द फीमेल देयर स्टार्टेड क्राइंग. She started crying that I have been suffering with my hormonal health and uterus and all those things, and it's been a long time I am under medicines and I am unable to help myself. So बहुत बार होता है कि चीजें आप सिर्फ लेआउट देख के प्रॉब्लम जज हो जाती है, एंड द पीपल आउट देयर दे कन्फेस दैट यस वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस. मैम बेडरूम की डायरेक्शन से क्या रिलेशनशिप अफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली करता है. ओके. Definitely करता है. So the children are expected to be very active and happy going. So the northern and the eastern and northwest side, they are considered more active zones, you know. So बच्चों के bedrooms वहाँ पे ज़्यादा preferred होते हैं. So if a person is ready to be married and he is ready to take on a family, तो उनको थोड़ा सा stability वाले zone ज़्यादा preferred होते हैं. So it depends how many members are going to occupy the space. Then what is the purpose of each member differently. Ma'am, is it true that clutter in certain zones, it stops your financial flow? Definitely. Clutter is the biggest hurdle in your luck, your prosperity, your happiness. किसी दिन घर में heaviness feel हो रही हो ना, I am sure सबके घर में ऐसा सामान होता है जो पिछले 6 महीने में भी या सालों में भी यूज नहीं हुआ होता. But we are so fond of carrying those things with us. स्टोर रूम बनते हैं. मैं ये बोलती हूँ कि जिस दिन बहुत हैवी फील हो रहा हो, उस दिन अपने घर में से 2 ऐसा आइटम बाहर निकाल के फेंक दो जो आपने पिछले सालों में यूज नहीं करे. एंड ट्रस्ट मी, आई गेट बैक द रिजल्ट कि वी आर फीलिंग मच बेटर. क्लटर इज लाइक अ डेड एनर्जी. सबसे ज्यादा क्लटर रूफ पे मिलता है. रूफ इज योर इमीडिएट हेड. जिसकी रूफ पे जितना क्लटर होगा वो बंदा चैन की नींद नहीं सो सकता. और रूफ टॉप पे मैक्सिमम हमेशा वही सामान होता है जो आपकी रूटीन की लाइफ में यूज नहीं हो रहा होता. मैक्सिमम स्टोर्स ही हमारे रूफ पे बनते हैं. रूफ पे ही बनते हैं. सो मैं रूफ स्टोर बनाने के अगेंस्ट नहीं हूँ. स्टोर बनाओ बट कीप थिंग्स जिनकी रेगुलर मूवमेंट या यूजेज हो रही है. डोंट पुट डेड स्टॉक देयर. ब्रोकन चेयर्स, वो जो बारिश में गीला हो रहा है सामान, एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल. सो ऑल ऑफ दैट इज नॉट अलाउड एंड प्रेफर्ड. सामान रखो, ऑर्गेनाइज तरीके से रखो. वो रखो जो आप कभी कभी तो यूज कर रहे हो, कभी तो निकल रहा है वो. बिकॉज मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीजें मूव नहीं होंगी वो वहां पे सिर्फ स्टैग्नेंसी कैरी करेगी. So if I have to ask you about one example, one real life example, जहाँ पर आपने corrections करी और लोगों की life बदल गई, can you just give me out an example? Here only in Gurgaon, I met a family and उन्होंने कितने बड़े बड़े चेंजेस कर लिए एडवाइस करने से. वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी. When I came back again to visit that family, I could not recognize the house only, जो मैं पहले देख कर गई थी. उनका वाटर टैंक शिफ्ट करना एक बड़ा टास्क होता है, राइट. द पाइप्स एंड एवरीथिंग हैव टू बी चेंज्ड. उन्होंने वो एफर्ट किया. उनके मंथली एक्सपेंसेस दे ड्रॉप डाउन टू लाइक अ मैसिव नंबर. लेट्स से दे वर स्पेंडिंग 5 lakhs a month in the medical expenses. It came down to 1.5 lakhs immediately after the results. उनकी किचन मैंने थोड़ा सा उसमें बैलेंसिंग और ट्रीटमेंट कराया. उन्होंने किया भी सब कुछ. एंड यू वोंट बिलीव 50% ऑफ द हाउस वाज फुल विद क्लटर. थोड़ी सी एंट्रेंस स्ट्रीट की, वाटर टैंक्स हमने शिफ्ट कराए. और मतलब इट वॉज मैजिक. इट वॉज अ एग्जाम्पल फॉर मी दैट एक्चुअली इफ यू ट्रस्ट योर ओन luck and destiny, and if you are ready to come forward one step also, God has so much to give to you. You have to be receiving for that. Action. So ma'am, what are the props and the remedies that are required for these vastu dosh? So the first attempt is always a remedy जिसमें हम तोड़फोड़ कोई भी suggest ना करें. वो preferred भी होती है because it's convenient, and we have seen wonderful results with them using metal strips. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. टू कट अ जोन, टू ट्रीट अ टॉयलेट, इट वर्क्स वंडरफुली. देन वी हैव मिरर्स जो बहुत अच्छा काम करते हैं. मिरर्स से भी बहुत अच्छी हमें रिजल्ट्स डिलीवर हुए हैं. देन सिंपली रिप्लेसिंग और रिमूवल ऑफ सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट वेरी ग्रेट इन द प्रेमिसेस, लाइक सम नेगेटिव पेंटिंग्स और लेट्स से सम नेगेटिव आर्टिफैक्ट्स. उनको हटाने से भी आई हैव सीन वी गेट वेरी नाइस रिजल्ट्स. सो तोड़फोड़ इज नॉट ऑलवेज द ओनली सोल्यूशन. सिंपली भी चीज़ों को ट्रीट किया जाता है विद गुड रिजल्ट्स. इट इज़ ओनली विद द नॉर्थ ईस्ट कि हम बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस
नहीं कर सकते. ऑल्सो विद द सेंटर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इफ इट इज डिस्टर्प्टेड या नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत टेम्परिंग हुई है तो उसकी रेमेडी थोड़ी सी ट्रिकी होती है. ओके. और अगर WC है नॉर्थ ईस्ट में तो उसकी रेमेडी सिर्फ रिमूवल होती है. बाकी सारे जोन्स आर मोस्टली डेल्ट विद ईज एंड विदाउट अ प्रॉब्लम. Now, if I talk about the props, तो crystals को how do you use them as props? आई यूज क्रिस्टल्स वेरी लेस. ऐसा Okay. नहीं है कि उनके रिजल्ट्स नहीं है, बट देन द फर्स्ट फोकस हैज टू बी ऑन द करेक्शन ऑफ द लेआउट. देन ऑल ऑफ दीज आर एनर्जी प्रॉप्स विच हेल्प टू बैलेंस दैट एनर्जी. वो इनिशियल बैलेंसिंग पहले लेआउट से ही होनी बहुत जरूरी है. उसके बाद हम इन सारे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके वहां पे पीस एंड प्रोस्पेरिटी ये सब इंश्योर करते हैं. अगर एक जोन में प्रॉब्लम है और हम सिर्फ क्रिस्टल लगा के सोचें कि ये ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता. तो मतलब अगर मैं एमेथिस्ट रख दूंगा तो that will not alone solve the दैट problem. विल लेसन डाउन द प्रॉब्लम, बट लाइक नॉट ट्रीट इट. वो थोड़े दिन ऐसा लगता है कि हाँ बहुत फर्क आ गया, बट देन इवेंचुअली वो भी उस एग्जिस्टिंग एनर्जी में मर्ज हो जाता है. And if एंड I, क्रिस्टल ऑल्सो नीड अ लॉट ऑफ हैंडलिंग एंड रीचार्जिंग. सो बहुत सारे लोग आर नॉट अवेयर. recharging of crystals. यस, रीचार्जिंग, एवरी क्रिस्टल नीड्स रीचार्जिंग. और हर क्रिस्टल की रीचार्जिंग अलग तरीके से होती है. सो एक्सपर्ट्स आर देयर फॉर एवरीथिंग, बट मेजर बैलेंसिंग शुड बी and layout. only be done with the layout. And what about the pyramids that you see? Do you think Same like the crystals. You can place a pyramid. It attracts the energy, repels the energy, but then the major balancing should be done prior. Before it's salt used. bowls and the water bowls? उसकी कोई science है? Yes, they do help. So water helps in cleansing. We all know, right? Yeah. And salts also they attract the negative energy, and then we get rid of that salt, and that's how we feel that energy is clear now. They do help definitely, but only to a certain extent. But yes, it's not a bad practice to be done. Like एक toilet है जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, you can put a salt bowl there and replace it after a particular interval, and that definitely helps, I believe. So as you just said, metal strips, would you Metal rate them strips- as the best corrective Yes, the action that best. can be taken? Yes, definitely. And most powerful but underrated remedy, what do you think it is? Most powerful remedy is always decluttering. Have things only which you are using in your house, which are movable, which are moving in, like not, let's say, every day, but then after at least a particular interval. Not lying dead in your house in a corner which you don't even look about, maybe in even 6 months. जितना कम सामान होगा डेड सामान, उतनी कम स्टेगनेंट एनर्जी होगी. सो decluttering, I have to fix the day that once a month I will have to get rid of things which are no longer serving me. And trust me, वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ जाती है. मुझे ऐसा लगता है अच्छा इतना सामान आता है घर में, जब निकालने लगो तो there are so many things even in the kitchen. Past few days I was shifting my house and I was so alarmed to see that I have so many utensils, and how many do I use? All of us, maximum of us are living in nuclear families. There are a handful of utensils we use, and the amount which we fill up in the cupboards and everywhere, it's alarming. तो ये प्रैक्टिस आप सबको बोलोगे? If everything is going right for सबको, someone, तो सबको. decluttering करो ही करो. Decluttering करो, you will feel very light. जिस दिन, I will put a very small example. जिस दिन हम अपने हाथ से we dust our room, dusting करते हैं, we feel so light कि dusting तो आज ही हुई है. This but helper is not really doing anything every day. We feel that energy कि आज घर actually में साफ हुआ है. So imagine what will decluttering do to your head. You will actually feel very light. And there are number of unnecessary things lying in the house. Everyone's house. So decluttering really helps you feel lesser load, and you feel energized in the morning, and you can think about that what should be the target for today. What do I achieve? So इस बार weekend का यही काम होगा. Yes. So ma'am, if I talk about Gurgaon's luxury market of real estate, now there are a lot of high rises coming up. So what is one advice that you would like to give कि वास्तु करेक्शन के लिए, ये तो for high rise developers या high rise जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, एक एडवाइस क्या होगी for buyer perspective अगर मैं आपसे बात करूं? Always check the northeast of your Okay. house. Northeast should not have any kitchen or a toilet. Then the entrance of the house should also be checked. कि वो एंट्रेंस कितने सही जोन में आ रही है, गलत जोन में आ रही है, गलत आ रही है तो ट्रीट हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे. अवेयरनेस इज अ बिग थिंग. अवेयरनेस ब्रिंग्स यू टू अ लेवल वेयर यू आर प्रिपेयर्ड कि आगे व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. सो अवेयर आपको कौन कराता है? राइट कंसल्टेंट विल मेक यू अवेयर, राइट? सो डोंट हेजिटेट इन स्पेंडिंग
on a consultant when you are ready to spend on a house. So I think that should be the next step, that you should definitely be thinking about someone who can guide you right. Ma'am, if I talk about density, like a low density in comparison to high density space, low density में ज़्यादा एनर्जी बनती है, एनर्जी वाइज कोई डिफरेंस आता है? डेफिनेटली आता है, अगेन बिकॉज थोड़ी सी ओपन स्पेस आपको ज्यादा मिलती है, नेचुरल लाइट इंश्योर्ड होती है, बट तो भी लेआउट का बहुत बड़ा वो उसमें रहेगा। गेम है. अगर आपका लेआउट अंदर से अच्छा नहीं है, जिस एनर्जी को मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट से ही आना चाहिए, अगर वो एनर्जी आई साउथ वेस्ट से रही है, you are already in the wrong space. Even if you are in a low density zone where you are enjoying the natural pleasures, but you are struggling inside your own house, then what's the point? So that's the first thumbs up you have to give, that the natural light is good, the open space is good from all the directions. But then the next focus should be and has to be on the internal layout. अगर Right. वहां पे एनर्जी डिसरप्शन है तो भी प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं है. Ma'am, now this brings me to my next question. Glass facades और आजकल glass in terms of interiors बहुत ज़्यादा use हो रहा है. Very heavy glass usage is there. Yes. Is it good or is it bad? So it's good to a certain extent of maintaining your aesthetics, but Okay. having all the walls of glass, somehow I have felt that the people in the house feel very less support. Walls ensure your support zone in your life. जिस घर में दीवार ही नहीं होती, वो लोग बहुत जल्दी अकेला, और उनको कभी जब लाइफ में जरूरत पड़ती है, लेट्स से अ सिंपल सपोर्ट फ्रॉम द बैंक, अगर आपको वो भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, द बिजनेस डजंट फ्लरिश एज सच. Correct. सो अ लॉट ऑफ ग्लास वर्क इज नॉट रिकमेंडेड. हो सकता है कि आप ले लो ग्लास एस्थेटिक्स को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द इंटीरियर साइड, एनीवन विल वांट टू हैव दैट, बट जस्ट वी नीड टू नो वेयर टू स्टॉप. And what about minimalism? आजकल बहुत minimalism या वाबी साबी, if I talk about, काफ़ी आर्किटेक्चर वहाँ पर भी शिफ्ट हो रहा है. सो वहाँ पर एनर्जी क्या कम हो जाती है? एनर्जी डिस्टर्बिंग कम होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है. अगर आप घर में बिल्कुल ही खाली कर दोगे, इफ़ यू डोंट प्लेस एनीथिंग अंडर द कवर ऑफ मिनिमलिज्म, आई थिंक दैट स्पार्क एंड दैट फील गुड फैक्टर इज ऑल्सो मिसिंग. सो अगर बहुत ज़्यादा क्लटर अच्छा नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मिनिमलिज्म भी नहीं है. बैलेंस इज द की टू लाइफ. इफ़ यू आर लिविंग अ बैलेंस थिंग, यू आर मेंटेनिंग द एस्थेटिक्स, घर आके अच्छा भी तो लगना चाहिए ना. सिर्फ 4 दीवारों में लाइक यू विल नॉट फील लाइक दिस इज अ होम. So have some good paintings, have some good family pictures, have a good water fountain placed in the right zone. इससे भी minimalism practice होता है, and then you also maintain the aesthetics of your house. Got it. So ma'am, now is the fun part. We'll be moving into the rapid fire zone. So you have to think less and answer quick. So northeast entrance, good or bad? Overhyped. Southwest master bedroom. Okay. Kitchen in north. Very bad. Mirror facing bed. Very, very bad. Aquarium in a living room. Depends on your personal choice. Like, no comments. Indoor plants in bedroom. Depends where the bedroom is, which zone it is coming in. Wonderful. So next time Gurgaon buyers ask what's the super built up, also ask what's the spiritual built up, because marble fades, energy stays. And with this parting note, I would like to thank Ms. Chanchal Gupta for being with us here today. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you.